Hello students, welcome back to your physics class. I hope you all are fit and fine. Yesterday you have learned about clinical and digital thermometers and how to use them. Today we will start with the next and the last topic of the chapter, measurement of area. So firstly we will see what is area. Area is the amount of space covered by an object, or we can say that the surface occupied by a plane figure is called the area of that figure. मीन्स कि अगर हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कितनी स्पेस वो कवर कर रहा है, द अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और कितना वो सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज नोन एज द एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और एरिया ऑफ दैट फिगर. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एरिया. Area is a derived physical quantity. As we know, physical quantities are of two types, fundamental and derived. Fundamental quantities are those which do not depend on other quantities, but derived are those which depend on fundamental physical quantities. Likewise, area is also a derived physical quantity. Why it is derived physical quantity and from which it is derived? Area is derived from length. As area is equal to area of rectangle is equal to length into breadth, area of square is equal to side into side. So it means area is derived from length, because as we know, side is also length, side of square is also length, and breadth of rectangle is also length. So ultimately area is derived from length. So we can say that it is a derived physical quantity. Similarly, next are the units for measuring area. As I have told you that area is a derived physical quantity, so its units are also derived from the units of length. As we know, the SI unit of length is meter, so SI unit of area will be equal to meter into meter. It will be equal to meter square or m square. This is the symbol used for the SI unit of area. So to measure the area of different sized objects, there are different units used. For example, to measure the areas of cities or countries, we use kilometers, kilometer squares, and to measure the area of farms and houses, we use hectare. So these are the larger units used to measure larger areas of cities, countries, houses, farms, or other buildings. And if we have to measure the area of smaller objects like small cube or other small objects, then we will use millimeter square. This m means milli, centimeter squares, and decimeter square. So these are the smaller units of area used to measure the area of small objects. Next is the relationship between different units of area. Firstly, 1 millimeter square is equal to how many meters square? As we know, 1 millimeter square will be equal to 1 millimeter into 1 millimeter. And 1 millimeter, we know that it is equal to 10 raised to power minus 3 meter. So it will be equal to 10 raised to power minus 3 meter into 10 raised to power minus 3 meter. It will be equal to 10 raised to power minus 6 meter square. Similarly, 1 centimeter square will be equal to 1 centimeter multiplied by 1 centimeter. And 1 centimeter is equal to 10 millimeter. This you can remember that 1 centimeter is equal to 10 millimeter multiplied by 10 millimeter. So it will be equal to 10 into 10, 10 square millimeter square. और अगर हम इसे एक्सप्रेस करना है मीटर स्क्वायर में, then we know that 1 meter is equal to 100 centimeter, और 1 centimeter वो किसके इक्वल होगा, that will be equal to 10 raised to power minus 2 meter. So value will be, we will put here 10 raised to power minus 2 meter into 10 raised to power minus 2 meter is equal to 10 raised to power minus 4 meter square. And next is 1 meter square will be written as 1 meter into 1 meter, and if we have to express it into centimeter, then we know that 1 meter is equal to 100 centimeter, so it will be equal to 100 centimeter multiplied by 100 centimeter, and it will be equal to 10 raised to power 4 centimeter square, because here are 4 zeros, so it will be equal to 10 raised to power 4 centimeter square. Similarly, 1 hectare is equal to 100 meter square, or 100 meter into 100 meter, so it will be equal to 10 raised to power 4 meter square. And 1 kilometer square is equal to 1 kilometer multiplied by 1 kilometer. 1 kilometer, we know that it is equal to 1000 meter multiplied by 1000 meter. So it will be equal to 10 raised to power 6 meter square, because there are 6 zeros. So this is the relationship between different units of area. Next is how we can measure area of regular and irregular shaped objects. As we know,
ऑब्जेक्ट्स कैन बी रेगुलर शेप्ड और ऑफ इरेगुलर शेप्ड। कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी शेप रेगुलर होती है, कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी इरेगुलर शेप्ड होती है, मतलब उनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है। सो हाउ टू मेजर द एरिया ऑफ दिस regular and irregular shapes? Firstly, we will see how we can measure the area of regular shapes. Regular surfaces like sphere, rectangle, circles can be found out by different formulas. इनका जो एरिया है वो हम different formulas कैलकुलेट कर सकते हैं. Like अगर हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. And area of sphere is equal to 4 pi r square. Means if we know the side of a square, then we can calculate the area of square by using this formula. Similarly, we know if we know the length and breadth of a rectangle, then we can find out the area of rectangle. Similarly, अगर हमें सर्कल और सफेयर का रेडियस पता है तो हम इन दोनों फॉर्मूला से इन दोनों का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मतलब ये है कि जो रेगुलर सर्फेसेस है उनका एरिया तो हम इन पर्टिकुलर फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं. बट हाउ टू मेजर द एरिया ऑफ इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स और इरेगुलर सर्फेसेस? तो उसके लिए एक मेथड है. देयर इज वन मेथड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स, दैट इज ग्राफ शीट मेथड. वी कैन मेजर द एरिया ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स by using graph sheet. So as you know, I hope you have seen graphs in mathematics. These are used for plotting graphs and drawing mathematical diagrams. And you know, graph paper is a paper which is printed with a network or a number of small squares of identical size. Means कि इस तरह का होता है ग्राफ पेपर, आप सभी को पता ही है, जिसमें क्या है कि एक बड़ा स्क्वायर होता है, वो स्क्वायर है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मिलीमीटर. सॉरी, दिस इज द स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर. ये जो है बड़े साइज वाला स्क्वायर है. और इसके अंदर ही क्या है, छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं जिनका साइज क्या होता है, 1 मिलीमीटर. तो इस तरह का ग्राफ पेपर आई होप यू हैव सीन, ऑल यू हैव सीन. सो हाउ वी कैन फाइंड एरिया बाय यूजिंग ग्राफ शीट मेथड? सो फॉर दिस, firstly what we have to do, we will take an object, an irregular shaped object, like you can take a leaf or you can take an object of this shape. किसी भी शेप का आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो जिसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है. जैसे कि आप घर पे लीफ ले सकते हो या फिर कोई भी और ऑब्जेक्ट जिसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले वी विल टेक दैट ऑब्जेक्ट एंड वी विल प्लेस दैट ऑब्जेक्ट ओवर द ग्राफ शीट. हम उसको ग्राफ शीट के ऊपर रख देंगे एंड वी विल ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. हम उसकी आउटलाइन ड्रॉ करेंगे. आफ्टर दैट, नाउ टेक केयर, हियर आई हैव टेकन दिस सेंटीमीटर ग्राफ शीट. हम क्या सेंटीमीटर ग्राफ शीट लेनी है. सी हियर वी कैन टेक द सेंटीमीटर ग्राफ शीट एज वेल और वी कैन टेक द मिलीमीटर ग्राफ शीट. बट द थिंग इज, if we take 1 millimeter graph sheet, that will be very typical for you. I will further explain you why it is typical. After that, next step is remove the object. उसके बाद में क्या करेंगे, हम उस ऑब्जेक्ट को वहां से रिमूव कर देंगे. और रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, we will find out that how many number of squares a boundary encloses on a graph sheet. Some will be complete or some will be इनकम्प्लीट. हम देखेंगे कि वो कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं उसके अंदर इनक्लोज हो रहे हैं, मतलब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्क्वायर आ रहे हैं. अब आप देख सकते हो कि इसमें जो नंबर ऑफ स्क्वायर है कुछ तो कंप्लीट है, काफी ज्यादा तो इसमें कंप्लीट स्क्वायर ही है, और कुछ क्या है हाफ कंप्लीटेड है, कुछ सम आर मोर देन हाफ कंप्लीटेड एंड सम आर वेरी लेस देन हाफ कंप्लीट. मतलब कुछ तो कंप्लीट है ऑलमोस्ट, काफी इसमें कंप्लीट है, कुछ इसमें है जो हाफ फिल्ड है, कुछ है इसमें जो हाफ फील्ड से ज्यादा है, और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ही कम फील्ड है, जैसे कि ये वाला स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, इन फुली फील्ड मतलब कंप्लीट स्क्वायर्स को, और मोर देन हाफ फील्ड एंड लेस दैट आर एग्जैक्टली हाफ फील्ड, उन स्क्वायर्स को हम काउंट करेंगे और उसके बाद हम इसका एरिया निकालेंगे. सो फर्स्टली आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, काउंट द फुली फील्ड और कंप्लीट स्क्वायर्स ऑक्युपाइड विद इन द आउटलाइन and let the number of complete squares be a. हाँ जी, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर हम काउंट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं. कंप्लीट स्क्वायर्स, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. So
number of complete squares are 23. I will write here A is equal to 23. After that, what we have to do, we will count the number of squares which are exactly or almost half filled as half squares. मतलब हमें क्या करना है कि जो पूरे पूरे हाफ फील्ड हमें लग रहे हैं हमें उनको काउंट करना है. अब पूरा पूरा हाफ फील्ड कौन सा लग रहा है, जैसे कि ये लग रहा है हमें हाफ फील्ड 1, दिस इज 2, ये तो मोर देन हाफ फील्ड है 1, 2 एंड और कोई जो हमें हाफ फील्ड लग रहा हो अभी तक तो जो हमारे पास. हाँ, सो एग्जैक्टली जो हाफ फील्ड है मतलब पूरे पूरे जो हाफ फील्ड है वो क्या है हमारे पास 2 ही है. सो दीज आर रिटन एज 2 मतलब, और इसको हम डिनोट करेंगे बी के साथ. लेट दिस नंबर ऑफ एग्जैक्टली हाफ फील्ड स्क्वेयर्स बी बी. एंड आफ्टर दैट वी विल काउंट द नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वेयर्स एंड वी विल डिनोट दैट नंबर बाय सी. उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो मोर देन हाफ फील्ड है हम उनको काउंट करेंगे. अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मोर देन हाफ फील्ड है उसमें कौन कौन से है 1, देन उसके बाद 2, इसके बाद 3, 4, 5 एंड नेक्स्ट इज 6, 7. So these are more than half filled. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Any other? No there is. So these are the more than half filled and we will denote these by C. So these are equal to 7. So in this way we will count the number of squares, number of complete squares, number of half filled, exactly half filled मतलब जो पूरे पूरे half filled है, and number of squares which are more than half filled. So in this way we will count, and after that we will ignore the squares which are covered less than half or that are less than half filled. और हम क्या करेंगे उन squares को neglect कर देंगे, ignore कर देंगे जो क्या है हाफ फील्ड से कम है, मतलब बहुत ही कम है. जैसे कि ये वाला स्क्वायर हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर करेंगे इसको, ये वाले को ऐसे जो बहुत ही कम ऑक्यूपाइड है जैसे ये वाला स्क्वायर है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे. तो इस तरह से हम इन स्क्वायर्स को इग्नोर करेंगे विच आर लेस देन हाफ फील्ड. सो हाउ वी विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स और द टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर और द टोटल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट हियर स्फीयर, ऑब्जेक्ट का हम जो एरिया वो कैसे फाइंड आउट करेंगे. वी विल राइट हियर दैट विल बी इक्वल टू फुली फिल्ड स्क्वायर्स प्लस हाफ फील्ड स्क्वायर्स प्लस मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर. फुली फिल्ड मीन्स कंप्लीटली जो फिल्ड होंगे कंप्लीट स्क्वायर्स. तो जो कंप्लीट स्क्वायर है उसको हमने नोट किया था ए के साथ, और उसका एक छोटे स्फीयर का जो एरिया है वो किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. बिकॉज मैंने आपको बोला था कि ये जो हम ग्राफ पेपर ले रहे हैं हम ये 1 सेंटीमीटर का ले रहे हैं, मतलब इसकी जो साइड है ये वाली साइड भी 1 सेंटीमीटर की है और इस तरफ से जो साइड है वो भी क्या है 1 सेंटीमीटर की है. तो अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ या फिर लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि ये तो स्क्वायर है तो ये साइड इंटू साइड और लेंथ इंटू लेंथ आएगा. मीन्स इट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, इट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इसका मतलब ये कि ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं इनका एरिया कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. और कितने नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स हैं दैट इज ए. नेक्स्ट है उसके बाद में हाफ फील्ड. हाफ फील्ड को हमने किसके साथ नोट किया था बी के साथ, और बी के बाद जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं अब ये जो है हाफ फील्ड है तो इसीलिए हम इनका क्या कर देंगे हाफ कर देंगे. उसके बाद में मोर देन हाफ फील्ड है जो उनको हमने नोट किया था सी के साथ, और जो मोर देन हाफ फील्ड है उनको हम एक तरह से अप्रोक्सीमेटली कंप्लीटली ही मानेंगे, मतलब जो हाफ फील्ड से ज्यादा वाले हैं उनको हम कंप्लीट स्क्वायर्स ही मान के चलेंगे, इसलिए उनको हाफ नहीं किया हमने, उनको 1 ही लिखेंगे. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इट विल बी इक्वल टू ए सेंटीमीटर स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू बी बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू सी सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये आपके पास आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2 प्लस सी bracket close centimeter square. Centimeter square is the unit of the area that we have to mention, it is must. So in this way we can calculate the area, and how we can find out this using these squares as we have calculated I can show you. ये भी हम कर ही लेते हैं. तो इसके मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा 23 प्लस b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2, तो 2 का हमने क्या करना है, इट विल बी 2/2
प्लस सी कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर स्क्वेयर. सो इट विल बी इक्वल टू 23 प्लस 1 प्लस 7 centimeter square. So the area will be approximately equal to 23 plus 1 24, 24 plus 7 it will be equal to 31 centimeter square. मतलब क्या है, तकरीबन जो इसका एरिया होगा इस ऑब्जेक्ट का, जो भी हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है उसका जो एरिया वो अप्रोक्सीमेटली लगभग इसके आसपास होगा 31 सेंटीमीटर स्क्वेयर. सो दिस इज वेरी एक्यूरेट रीडिंग ऑफ दैट एरिया. और यहाँ पर मैंने एक और बात की थी कि हम हैं जो साइड 1 मिलीमीटर साइड का जो ग्राफ पेपर है वो भी चूज कर सकते हैं, पर उसकी लिमिटेशन क्या होगी. जैसे हमने यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वेयर्स को काउंट किया है तो वहां पर भी हमें नंबर ऑफ स्क्वेयर्स को काउंट करना पड़ेगा. पर प्रॉब्लम क्या होगी कि ये जो स्क्वेयर्स हैं, छोटे छोटे स्क्वेयर्स हैं, इनको काउंट करना डिफिकल्ट हो जाएगा. इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू काउंट दिस स्मॉल स्क्वेयर्स ऑफ साइड 1 मिलीमीटर. तो इसकी वजह से हम क्या यूज करेंगे 1 सेंटीमीटर. हम इससे बड़े वाला भी नहीं यूज करेंगे, बड़े वाला तो इससे भी ज्यादा जल्दी काउंट हो जाएगा. पर उसका नुकसान क्या है, क्योंकि अगर हम बड़े वाला यूज करेंगे तो वो जो एरिया होगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, लगभग जो एरिया हम फाइंड आउट करेंगे वो एक्चुअल एरिया से ज्यादा मैच नहीं करेगा. मतलब क्या है कि क्योंकि स्क्वायर बड़े हो जाएंगे तो जितना नंबर ऑफ एरिया होगा वो भी उसका क्या है थोड़ा कम हो जाएगा. तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो एरिया है वो एक्चुअल एरिया के लगभग इक्वल नहीं आएगा. सो वी विल टेक द मॉडरेट वन. हम क्या है जो मॉडरेट वाला है वो लेते ना तो ज्यादा बड़े साइज के स्क्वेयर्स और ना ही ज्यादा छोटे साइज के स्क्वेयर. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द irregular shaped objects. You can also do at your home if you are having graph paper. I hope you understand this topic. So thank you.